So today is lecture number 3 of AC circuits, and I would like you to observe the first component today. What is this? Anyone who can think about 3 points about it and talk about it? Anyone who can tell me about a resistor? Who can unmute and tell me about a resistor? Who will tell me? जो भी तुमको आता है resistor के बारे में. I don't want to know what's the value or anything. I just want to know what is a resistor according to you. You have studied in 11th standard. You have studied in 12th standard. So resistor क्या होता है? What are the words that come to you when you think of a resistor? Yes, opposes the flow of current. Good. और क्या? So I'm getting some following answers in the chat box. Opposes the flow of current. What else? Resistor मतलब क्या? Yeah, V is equal to IR. Opposes the flow of current. Okay, then what? और क्या क्या याद आता है resistance का? So this is the first point. This is the second point. और क्या याद आ रहा है? Reduces current flow, opposes flow of current, same ही होगा. और क्या? Unit is ohms. Okay. Unit is ohms. और क्या? Yeah, वो तो लिख ही सकते हैं. V is equal to IR से R is equal to V upon I. Yes. Yeah, volt per ampere भी लिख सकते हैं. Correct. और क्या? Yes, what you're seeing here is a color coded resistor. So color coded resistors are nothing but carbon composition resistors. They are nothing but carbon composition resistors. Anything else? Okay. A very important point which you all are not telling me is it is a dissipating device. Dissipating का मतलब होता है giving out. It is a dissipating device. आपने पढ़ा रहेगा. It dissipates heat. है कि नहीं? आपने पढ़ा है कि नहीं? It is dissipates what? Heat. It dissipates energy. / energy भी बोल सकते हैं आप. वो energy बाहर फेंकता है. So whenever we think of a resistor, we think about it giving out energy. आपका हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कल मैंने आपको बताया था शायद, मैंने कहा था कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिव्स आउट एनर्जी. डेसिपेट मतलब गिविंग आउट बेटा, रिलीजिंग एनर्जी. डेसिपेट का मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी, बाहर फेंकना. वो क्या फेंकता है? वो एनर्जी फेंकता है जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल आता है. पता है रेजिस्टर में पावर होता है. यू नो ऑल द पावर फॉर्मूलाज, I square R, V square upon R. तो रेजिस्टर की वजह से पावर कंजम्पशन होता है और पावर कंजम्पशन से आपका बिजली का बिल बनता है कि नहीं? So this is a very dissipating device. It kind of gives out the energy. It kind of gives out the heat. So you have to think about this something. So color coded resistors आपने life में देखा रहेगा. This is the kind of resistors that I'm talking about. Yeah, it's a 2-terminal device. Yes. What about this? Have you seen this in your life? Have you seen these diagrams in your life? ये क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? What are these? Okay, solenoid I can see. These are nothing but in AC, all these are inductors. Inductors is given by L. इसका यूनिट था हेनरी. है कि नहीं? इंडक्टर्स स्टोर मैग्नेटिक फील्ड. ये स्टोर करते, ये डेसिपेट नहीं करते. दे स्टोर मैग्नेटिक फील्ड. L is equal to phi upon I. Right? L is equal to phi upon I. इंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते थे. इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते थे. अगर आपको याद है इसमें बैक ईएमएफ आता है, काउंटर ईएमएफ आता है.
which is minus L di by dt. I don't know how many of you remember. और हमने कहा था L is directly proportional to n square because L is mu naught n square A by N. So whatever you're seeing here is an inductor. Inductor stores energy. इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी. आपने अपने ट्यूबलाइट पे चोक देखा रहेगा. तो हम कहते हैं कि इंडक्टर को जब रेजिस्टर के साथ, we'll be studying this in detail later, we call this as the choke coil. चोक होता है, ट्यूबलाइट में चोक होता है. But the inductor is basically to store energy. It does not dissipate like a resistor. Clear hai bachas? So you don't have to take these down. This is just for your knowledge. Now, yesterday, यानी कि हम करने क्या वाले हैं, हम डेरिवेशंस करने वाले हैं जहां पर हमें चेक करना है कि जब हम इस इंडक्टर को, इस रेजिस्टर को हम एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो किन पर डिपेंड करता है, उनका बिहेवियर कैसा है जब हम एसी वोल्टेज लगाते हैं तब. कल हमने वहीं पर हमने बंद किया था. हमने ऑलरेडी डीसी का देख लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा हमने, एमडब्ल्यूसी में देखा हमने. तो डीसी हमेशा लगाया है, बट हम एसी वोल्टेज लगाना चाहते हैं अभी और देखना चाहते हैं कि उनकी बिहेवियर में क्या फर्क है, वो कैसे अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं. That's why we started off last lecture with different types of AC circuits, and our first topic was applying it to a resistor. तो आपने कल ऐसा कुछ डायग्राम बनाया रहेगा, है कि नहीं? आपने, आपके बुक में ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा जिसमें आपने R रेजिस्टर है, I आपका करंट है, एंड E is nothing but E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या थीटा लिख सकते हैं. So this is nothing but the derivation for AC applied to a circuit containing R only. ये हमारा आज का पहला टॉपिक है. हम AC जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, हम एक रेजिस्टर को लगा के देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. So what do we observe? First point, E is E naught sine of omega t. Right? Now what is I? What is I? I is nothing but, can I say I is nothing but E upon R? Everyone agrees? The current that is flowing here by Ohm's law, I can say that I is nothing but E by R. Pay attention, it is a very big derivation. Points है basically that जो आपको याद रखना. So what is I? The instantaneous current here is E upon R, and E is what? E already आपने define किया है. What is E? E naught sine omega t. So E के जगह पे I'm writing E naught sine omega t divided by R. अब ये जो E naught upon R है, can I say E naught is peak value, और peak value हमेशा constant रहता है? R is also constant, R का वैल्यू constant होता है. अगर मैंने बोला 10 ohms तो वो 10 ही होने वाला है, वो चेंज नहीं करेगा. So E naught upon R is a constant, and therefore we are going to substitute it with, let that constant be equal to I naught. Let I naught be equal to E naught upon R. So हमारा ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी? वो हो जाएगा I is equal to E naught upon R को क्या बोला हमने? I naught sine of omega t. So this is the value of instantaneous current. This is the value of instantaneous current. And the first one is the value of instantaneous voltage. अगर ऐसा है that E is equal to E naught sine omega t and I is equal to I naught sine omega t, I know that my resistor R is nothing but, क्या होगा R? कहां से पता चलेगा R? Look at this equation. Look at this let जो बोला है.
क्या बोल सकते हैं आर यहां से? कैन आई राइट आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट? लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट आर इज ई नॉट अपॉन आई नॉट। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैंने इस ई नॉट अपॉन आई नॉट को, वैसे भी वो वी अपॉन आई है ना, मतलब इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम्स ही रहेगा। अगर मैंने कहा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, मल्टीप्लाई बाय √2 एंड डिवाइड बाय √2, अगर मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, अब देखो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे। आई विल राइट इट एज आर इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, एक √2 ई नॉट के साथ और दूसरा आई नॉट के साथ। एनी प्रॉब्लम हियर गाइस? व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन 1√2, मतलब इसको साथ में लिया और ये √2 डिनोमिनेटर में डाला। दैट मींस इट्स एज गुड एज पुटिंग इट इन द न्यूमरेटर। आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड। ठीक है, √2 को एडजस्ट किया, ऊपर और नीचे एडजस्ट किया। अगर ऐसा किया, everyone remembers what is E naught upon √2? E naught upon √2 is nothing but ERMS. And I naught upon √2 is IRMS. Now look at the formula of R. So many formulas for R. R is either ERMS upon IRMS, or R is either E naught upon I naught. कुछ भी आप करें, this looks like just like a DC circuit, है कि नहीं? आर वहां पे वी अपॉन आई होता था, यहाँ पे इट इज ई नॉट अपॉन आई नॉट और ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ओमेगा या फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं दिख रहा है आर के साथ। कैन यू सी एनीथिंग लाइक ओमेगा विथ आर? आर के फॉर्मूला में ना ओमेगा है, ना टाइम पीरियड है, ना फ्रीक्वेंसी है, ये तो नॉर्मल अपना वी अपॉन आई है। सो वी कैन से दैट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोल सकते हैं? आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या ओमेगा या एफ के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। आर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड वी विल ऑल्सो मेक अ कमेंट दैट द बिहेवियर ऑफ आर is same. The behavior of R is same in AC और DC circuit, है कि नहीं? AC हो या DC हो, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेजिस्टर तो वैसे ही है, R इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, और रेजिस्टर का यूनिट क्या होता है? ओम्स। इसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारे पास दोनों का इक्वेशन है। व्हाट इज द करंट एंड व्हाट इज द वोल्टेज आउट हियर? द करंट इज I इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 3 एंड लुक एट पॉइंट नंबर 1। हमारे पास I और E का क्या है? इक्वेशंस है। अब इसको साथ में लिखेंगे। I will write it as E is equal to E naught sine omega t and I is equal to I naught sine omega t. I have already explained I naught is nothing but E naught divided by R. आप बहुत कुछ सोच सकते हैं एक्चुअली। E naught आपने सुना है बनाओ, डू यू रिमेम्बर? बनाओ डिराइव किया था हमने। E naught is ban omega. You can write it like that also. We can also write I naught as BAN. Omega can be written as 2 pi F divided by R. We can also write I naught as BAN 2 pi upon T into R. कैसे भी आप इसको represent कर सकते हैं. You know, there are different ways of representing this. That does not matter. Now if I have to draw waveform इन दोनों का, अगर मुझे waveform draw करना है, अब इन दोनों का वेवफॉर्म कैसे आएगा? सोचो कैसे आएगा दोनों का वेवफॉर्म। अगर मुझे E और I दोनों एक ही वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दिस इज योर E and I टुगेदर इन वन ग्राफ ओनली आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो E का ड्रॉ करने वाली हूँ, 0 से स्टार्ट करेगा वो, इट्स अ नॉर्मल साइनसॉइडल वेवफॉर्म।
this is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. ये अपना मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज प्लस सी नॉट हियर एंड अपना वैल्यू इधर क्या रहेगा, माइनस सी नॉट हियर एंड इट इज ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब जब हम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या बोल रहा है, इट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय आर. मतलब समझ में आ रहा है, करंट थोड़ा सा कम रहेगा हमेशा वोल्टेज से. अगर वोल्टेज इतना पीक वैल्यू लेता है, करंट थोड़ा सा कम रहेगा हमेशा. करंट अगर आप देखेंगे 220 वोल्ट आपका वोल्टेज है तो करंट 300 एम्पियर नहीं रहेगा, राइट. करंट इज ऑलवेज लेसर देन वोल्टेज, 5 एम्पियर रहेगा, 15 एम्पियर रहेगा. तो करंट हमेशा वोल्टेज से कम ही होता है, ई नॉट डिवाइड हो रहा है आर से. सो इफ दैट्स द केस देन द आई का जो ग्राफ आएगा, यू विल सी दैट द ग्राफ विल बी स्लाइटली हाइट में कम. आपको समझ में आ रहा है, नेचर वैसे ही है, बिकॉज बोथ आर साइन ओमेगा टी. कोई फेज एंगल कुछ है नहीं, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था फेज एंगल. यहाँ पर कोई फेज एंगल कुछ है नहीं, तो वी कैन से दे आर इन फेज. I can say some very important points I can mention here. I can say E and I are in phase क्योंकि वो साथ में चालू होते हैं, साथ में मैक्सिमम पहुंचते हैं, साथ में वापस 0 होते हैं, साथ में वापस नेगेटिव मैक्सिमम पहुंचते हैं. So there is no phase difference. यानी कि I can say the phase angle or the phase difference क्या होगा यहाँ पर, कैन आई से द फेज डिफरेंस इज 0. फेज डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 0. अगर हमें फेज डिफरेंस पता है तो इफ यू रिमेंबर इन लेक्चर नंबर 1, कैन आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम, कैन आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम. ये मैंने जो वेवफॉर्म ड्रॉ किया है 6 पॉइंट, I'll try to draw the vector diagram which I have taught you as the phasor diagram. So always please write it as phasor only. Vector is only for your understanding. Phasor diagram. अब सोचो क्या होगा इसका phasor diagram. ये आपका रेफरेंस है और मान लो ये E है, क्योंकि E के पास कोई एंगल है ही नहीं, फेज डिफरेंस नहीं है. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी I को ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, आई कैसे आने वाला है, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसके पास भी कोई एंगल नहीं है. तो अगर आप याद करेंगे ये इसी लाइन में आएगा, बट थोड़ा सा कम ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आई जो है यू विल गेट इट स्लाइटली लेस एंड दीज आर ऑल आरएमएस वैल्यूज. इफ यू रिमेंबर दीज आर ऑल विच वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज. ये भी आरएमएस वैल्यू है जो हम यहाँ लिखते हैं, ये भी आरएमएस वैल्यू है जो हम यहाँ लिखते हैं, but you don't have to mention it as RMS. It is E और I लिखा तो समझ जाते हैं. This tells you that E and I are in phase. So instead of drawing that waveform, सब लोग इसको waveform draw करने से अच्छा हम phasor diagram करेंगे. So therefore, and the phase difference is nothing but 0. Less क्यों है, less इधर बताया ना, E I naught is E naught divided by R. मतलब अगर E naught तेरा 100 है और मैंने कहा रेजिस्टर इज 50, तो 100 डिवाइड बाय 50 ये 2 हो जाएगा ना. समझ रहे हैं, आई नॉट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय आर. डिवाइड करना मतलब कम होगा ना आई नॉट, तो आई नॉट हमेशा तेरे ई नॉट से कम होगा. एंड व्हाट इज आई आर एम एस, इट इज आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, वापस डिवाइड बाय √2 हो रहा है तो और भी कम हो जाएगा. इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम आता है. I hope guys are clear with this because this is based on our first lecture. Now phase difference कितना आया है, phase difference अपने को 0 आया है. We are studying a new word today called power factor. याद रखना ये power factor सिर्फ AC में आता है. Power factor कैसे है, what is power factor, cos of phi. cos of phi को हम power factor नाम देते हैं. अब यहाँ पर इन आवर केस हमारा फेज डिफरेंस क्या है, 0 है. तो एनीबडी कैन गेस cos phi क्या होगा. अगर phi 0 है तो cos phi क्या होगा,
cos phi हमारा 1 होगा. That means for an AC circuit, containing R only, जब सिर्फ रेजिस्टर रहता है, we say the power factor is unity. क्योंकि फेज एंगल 0 होने की वजह से हम कहते हैं पावर फैक्टर यूनिटी होता है. सो दिस इज अ न्यू वर्ड टुडे. पावर फैक्टर इज अ कंप्लीटली न्यू वर्ड टुडे. बहुत ही सिंपल है, कॉस ले लेने का. जो भी एंगल आता है, जो भी फेज डिफरेंस आता है, उसका कॉस ले लेने का. नाउ पॉइंट नंबर 9. You know what is average power dissipated? What is average power dissipated in an AC circuit? What is the average power dissipated in an AC circuit containing only R? अब सुन लो, जब हम डीसी कर रहे थे, मतलब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया रहेगा, तो सर ने आपको बताया रहेगा कि यू कैन यूज V²/R फॉर्मूला. You can use power is equal to I²R formula. You can use power is equal to VI formula. These are the 3 basic formulas we use for DC. मतलब जब बैटरी आपका ऐसा दिखता है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी रहेगा, तो आप V²/R यूज करते हैं, आप I²R यूज करते हैं, आप VI यूज करते हैं. बट इन AC वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला लाइक दिस. हमें एक फॉर्मूला याद करना है. पहले उसका डेरिवेशन होता था, अभी उन्होंने सिलेबस रिडक्शन की वजह से वो फॉर्मूला ये निकाल दिया है. दे हैव रिमूव्ड द डेरिवेशन पार्ट. सो पावर इन एन AC सर्किट, सो कंटेनिंग का मतलब कंटेनिंग. सो यहाँ पर पावर, एवरेज पावर डेसिपेटेड बाय दिस सर्किट, कितना पावर ये रिलीज करेगा, इज गिवन बाय ERMS into IRMS into cos phi. Very interesting formula, very important formula. Average power is ERMS into IRMS into cos phi. Now what is this average power called as? It is called as active power also. It is called as true power also. इसके काफी नाम है. It is called average power, it is called active power, or it is called true power. See, when I teach you, I will teach you everything together. मतलब मैं जब सिखाती हूँ तो मैं जेई मेन नीट लेवल पे सिखाती हूँ, ताकि आपको वापस कुछ सिनॉप्सिस एक्स्ट्रा नहीं करना है. जो पढ़ रहे हैं आप ऐसे ही पढ़े जैसे आई एम टीचिंग यू. माय नोट्स आर इनफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ERMS इनटू IRMS को टुगेदर हम एपेरेंट पावर कहते हैं. इसको हम कहते हैं एपेरेंट पावर. और ये वाला जो पार्ट है, हम इसको कहते हैं, एवरीवन नोज ऑलरेडी, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर. I will revise the whole thing again, but you have to pay attention. It's a very important derivation. P average is equal, क्योंकि आज का जो समझा तो ही आने वाले 6 derivation साथ में समझेगा. आज का नहीं समझा, then you are not going to understand the rest of the derivation at all. अगर आपका आज का लेक्चर मिस होता है तो आप बाकी लेक्चर्स को समझ ही नहीं पाएंगे. So average power जो होता है, it is given by ERMS into IRMS into cos phi. अब ये है क्या चीज, हमने तो नहीं देखा है पहले. ऑब्वियसली दिस इज समथिंग न्यू टुडे. ये पूरा स्लाइड आज का इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आप अभी सोच के बताएं, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. अपेरेंट पावर मतलब जितना पावर आपको घर में यूज करने के लिए गवर्नमेंट देती है. इसका यूनिट क्या होता है पता है? इसका यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर. बिकॉज ERMS का मतलब वोल्टेज होता है, EMF होता है, और I मतलब करंट होता है. सो एपेरेंट पावर का यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और एवरेज पावर या एक्टिव पावर का यूनिट होता है किलो वॉट्स.
यानी कि अपेरेंट पावर मतलब क्या, जितना घर में आपको मिलता है उसमें से आप जितना खर्च करते हैं, आप जितना खर्च करते हैं वो है आपका एक्टिव पावर। समझ में आया? डज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अपेरेंट पावर मतलब उन्होंने आपको कितना दिया घर में यूज करने के लिए, और एवरेज पावर मतलब आपने उसमें से कितना खर्च किया वॉट्स में। बिजली का बिल आता रहेगा ना आपके घर में, तो वो कैसे आता है, किलो वॉट आवर में आता है, KWH में आता है। कितना किलोवाट्स, यूनिट्स, कितना यूनिट खर्चा होता है। तो whenever you think about learning about it, always look at your इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसमें देखने का कितना यूनिट खर्चा हुआ, उसको पर यूनिट कितना पैसा देना पड़ रहा है आपको, तो उसमें जो आप खर्च करते हैं वो किलोवाट है। अभी देखो पूरा सर्कल में आ रहा है। अभी इधर पावर फैक्टर कितना है, इधर पावर फैक्टर कितना है, 1 है, 1 है। तो आप मुझे बताओ, अगर cos phi 1 है तो कैन आई से एक्टिव पावर विल बिकम इक्वल टू अपेरेंट पावर? अगर cos phi 1 हो गया तो कैन आई से एक्टिव पावर विल बिकम इक्वल टू अपेरेंट पावर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू चिल्ड्रन इज दैट cos phi, जिसको हमने अभी सेपरेटली लिखा, आई कैन राइट cos phi as, I can write cos phi as active power which is in kilowatts upon apparent power which is in kilovolt ampere. If your phi is 0, जो इस केस में है अपना, हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब है cos phi अगर 1 हो गया, इसका मतलब है एक्टिव पावर बिकम्स इक्वल टू अपेरेंट पावर। मतलब जितना आपने उसको दिया उसने पूरा खर्च कर दिया। ये खर्च करने का मेंटालिटी कौन से कंपोनेंट के पास है, रेजिस्टर के पास। रेजिस्टर ऐसा एक कंपोनेंट है जिसको जितना भी तुम दो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा खर्च कर देगा, है कि नहीं? KVL KCL सब आप पढ़ रहे हो, व्हाट इज दैट, एनर्जी है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चल रहा है। KVL किरचॉफ सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आप पावर देते हैं रेजिस्टर अपने, आप रेजिस्टर में ही खर्च कर डाल रहे हैं, पोटेंशियल बनाने में खर्च हो रहा है तुम्हारा। इसलिए तो आप कहते हैं समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, है कि नहीं? यू ओनली से ना समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ IR। आप सब कुछ खर्च कर रहे हैं। So what is basically, let's go back and revise it once again. When we are talking about applying an AC voltage, हम एक AC वोल्टेज को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? AC वोल्टेज को एक रेजिस्टर को देख रहे हैं, और देखना है कि रेजिस्टर AC में कैसे बिहेव करता है। तो AC का वोल्टेज क्या होता है? E is equal to E naught sin omega t. What is current? Current is E upon R. So हमने क्या किया, E का तो हमें इक्वेशन पता था 1 से, so हमने यहाँ पे E naught sin omega t upon R किया. So this is basically from 1. So this is I've substituted from first point. फिर हमने क्या किया, ये जो E naught upon R है उसको हमने एक नाम दिया I naught. What is I naught? Peak value of current. तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का क्या हो गया? It has become now point number 3 that it is become I is equal to I naught sin omega t. यानी कि ये बन गया हमारा इंस्टैंटेनियस करंट। Now we are going back to this cloud which I have made here for you to remember that I naught is E naught upon R. ये यहां से मिला हमें ऊपर से, तो हम बोल सकते हैं R is E naught upon I naught. R is equal to E naught upon I naught is nothing but ohms ही होगा because it's V upon I, it's Ohm's law. फिर हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 किया,
तो हमें मिला R इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। मतलब कहीं भी हमें ओमेगा नहीं दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है, टाइम पीरियड नहीं दिख रहा है, जबकि हमारे मेन इक्वेशन में ओमेगा है। तो हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि रेजिस्टर का ओमेगा से कुछ लेना देना नहीं है, रेजिस्टर का फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, रेजिस्टर का टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। I can also therefore conclude कि behavior of R is same in AC and DC, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। V upon I उधर, यहाँ पे ERMS upon IRMS। R is dependent on what? R is dependent on rho L upon A, chapter current electricity. Whoever taught you current electricity must have mentioned R is rho L upon A, specific resistance, length and area of cross section। उस पर डिपेंड करता है, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। Now, if you look at the both the equations, हमने इस स्लाइड में क्या किया, हमने उनका वेव फॉर्म बनाया। क्या बनाया? वेव फॉर्म बनाया, और हमने देखा कि कैसे है ये दोनों इन फेज। हम क्या बोलते हैं उसको? इन फेज। इसका हमने फेजर डायग्राम बना के देखा, वो इन फेज ही आएगा, और आई हमेशा ई से कम रखना है। मैंने बोला करंट कभी वोल्टेज से ज्यादा नहीं ड्रॉ करना है। E and I are in phase because I naught is E naught divided by R. E naught हमेशा बड़ा होता है, I हमेशा छोटा होता है, क्योंकि करंट वोल्टेज करंट को बनाती है, करंट वोल्टेज को नहीं बनाती है कि नहीं? बैटरी आप लगाते हो तब करंट फ्लो होता है। Then we studied a very new word today called power factor. Power factor is nothing but cos of the angle between voltage and current. फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को हम क्या कहते हैं? फाई। फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और क्योंकि यहाँ पर हमारा फेज एंगल क्या है? 0 है, क्योंकि ये साथ में चालू हो रहे हैं 0 से, ये साथ में मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ में यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ का फेज एंगल क्या होता है? phase angle is the angle between voltage and current, यानी कि EMF and current only. I hope you'll remember this. It is not some angle between resistor and current. It is not some angle between resistor and EMF. It is the angle between voltage and current only. It is the angle between EMF and current only. अब ये फेज एंगल जो भी होगा उसका हम cos phi निकालेंगे, और वो हो गया 1. So for an AC circuit containing R only, the power factor is unity. The power factor is unity. So what is the average power dissipated in an AC circuit? The average power dissipated in an AC circuit containing R is given by ERMS into IRMS into cos phi. यानी कि एक्टिव पावर और ट्रू पावर इज गिवन बाय अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा खर्च हो गया, वही तो मीनिंग समझाया। पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, वही उसका मतलब है। अगर तुम्हारा cos phi 1 हो गया, इसका मतलब जो तुमको दिया था, अपेरेंट मतलब व्हाट इज गिवन टू यू इज अपेरेंट पावर। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अपेरेंट पावर मतलब आपके घर में आपको कितना पावर यूज करने के लिए दिया जा रहा है। एक्टिव पावर मतलब उसमें से आपने कितना खर्च किया, क्योंकि दैट्स विल ऑलवेज बी इन किलोवाट्स। केवा तो आपने सुना ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? केवा तो आपने सुना ही रहेगा, आपने KW बहुत सुना रहेगा, क्योंकि आप जो खर्च करते हैं वो किलोवाट्स है, और जो आपको अनयूज्ड यानी कि द टोटल पावर दैट इज गिवन टू योर हाउस इज केवा। केवा मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब ERMS इंटू IRMS।
अगर आपका cos phi 1 होता है, इसका मतलब एक्टिव पावर हैज बिकम इक्वल टू apparent पावर. I hope you guys have understood what I said. I want you to start writing from slide number 5. I want you to start writing from slide number 5. Which point? Fifth point is same as what I got in this box today, Satyaveer. E is equal to E naught sin omega t. And third point को fifth point में साथ में लिखा. जो मुझे यहाँ मिला उसको मैंने वहां लिखा. नहीं, सिर्फ इतना यहाँ से शुरू करो लिखना. इससे पहले तो मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया. ये लिखना चालू करो. Slide number 5. If you have any doubts, please put it in the chat box. Hemangini, lecture number 1, you are not present. Phasor diagram is explained in detail with examples in lecture number 1. You will have to listen to AC circuits lecture. You cannot say that you have not listened to it. No, Mehak. No. I'm so sorry. You're getting it. Look at the formula, Mehak. R is equal to V upon I, na? और हम लोग V अपॉन I में हम लोग E नॉट साइन ओमेगा टी पूरा नहीं ले रहे, सिर्फ ERMS अपॉन IRMS और E नॉट अपॉन I नॉट. फॉर्मूला देखो ना, पॉइंट नंबर 4 के सारे फॉर्मूला में तुमको ओमेगा दिख रहा है क्या? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. अगर मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला दिया, फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला दिया, मैंने कहा से फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज EVR अपॉन 2. मैंने कहा मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज EVR अपॉन 2, तो उसमें टाइम नहीं है ना, है कि नहीं? सो व्हेन डायरेक्ट एक फॉर्मूला में एक फैक्टर है ही नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? इंडिपेंडेंट ही बोलेंगे ना. या सो हिमांगनी, उसमें फेजर और वेक्टर डायग्राम का डिटेल समझाया था कि एंगल 0 होगा तो क्या होगा, एंगल 90 होगा तो क्या होगा, एंगल 30 होगा तो क्या होगा, एंगल 60 होगा तो क्या होगा. तो वहां पर मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में फेजर डायग्राम समझाया था. I would request you to go back to that and see it again, because it's not possible to explain phasor diagram with examples again, is it? फेजर डायग्राम अपना हो चुका है गाइस. आई मीन ये तो मतलब लेक्चर नंबर 1 में हो गया है. लेक्चर नंबर 1 प्लीज अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैंने फेजर डायग्राम करते टाइम भी बताया था कि पूरे लेक्चर में फेजर डायग्राम है. Yeah, please watch it, because if you don't know phasor, that means you never understood scalars and vectors of 11th standard. Because scalars and vectors is same, no? Parallelogram diagram and scalars vectors को ही हम phasor diagram बोलते हैं ना. Vector diagram is nothing but the same thing of scalars vectors. So you may have to go back to 11th standard and see scalars vectors also. So I would request you to please go back and check those videos. Because it's not a new concept. जिसने आपको scalars vectors पढ़ाया रहेगा, he has to tell you about magnitude and angle.
तो वही चल रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड एंगल ऑफ वोल्टेज. I'm waiting for the rest of the class, Shreya. They have not finished. When they finish, I will change the slide. If you finish, please send me a done or something in the chat box, please. Okay. We'll have to take a separate lecture, Sushmita, for that. Please take sir's permission for private to repeat the whole thing, because this is on record. Slide number 6. Slide number 6. Yeah, last slide I can show. Satyavir, were you present for EMI AC generator? Satyavir, were you present for EMI? Yes. So what is the peak value when the coil is rotating in uniform magnetic field? What is the peak value of EMF when a coil is rotating in uniform magnetic field? You have a test in this coming week, right? So what is the peak value? Yes, it is E naught sine omega t. And what is E naught then? What is E naught? You must have written in your notebook. What is E naught? E naught depends on the magnetic field, the area of the rectangular coil, the number of turns, and it depends on the angular frequency omega, because it is rotating. Have you finished the slide, guys? Everyone has completed the slide. Next slide. See, all lectures are connected, so please don't miss any lectures, is my humble request to the class. Humble request to the classes, please do not miss any lectures. एक लेक्चर भी मिस होता है ना तो तुम्हारा लिंक छूट जाता है, तुम्हारी कनेक्टिविटी छूट जाती है, फिर तुम आते हो मैम ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है. एग्जाम के टाइम पे हमको पता है ना, you cannot learn
this is not 10th standard, this is not 5th standard, this is not 6th standard. 11th and 12th तुमने अगर साइंस लिया है तो याद रखो कि तुम्हें बहुत पढ़ना है. An average 11th and 12th student must study a minimum of 4 hours a day. Minimum of 4 hours a day. क्योंकि तुम्हारा पोर्शन बहुत ज्यादा है 11th plus 12th में. Have you finished this slide? When you finish, I'll go to the previous slide. I asked, so nobody told me anything. Now finish this slide and then I'll go to the previous one. ये slide complete करो. शुभम, गायत्री, यतिन, हेमांगनी, ये पहले complete करो. थोड़ा space छोड़ दो. इस लेक्चर को थोड़ा 2-3 बार सुनो, समझो, हर एक वर्ड को समझो. Completed, everybody? Slide number 7 completed. Sushmita, you have to talk to Prashant sir, please. Can you do that, beta? You have to talk to Prashant sir, okay? Sushmita, because EMI and AC circuits are connected chapters, so you may have to revise EMI before you come to AC. So EMI एकदम अच्छे से करोगे तो ही AC circuit समझोगे. Done. Next slide. 10th point, very important point. तो ये एवरेज पावर का डेरिवेशन उन्होंने निकाल दिया है, बट पहले के क्लासेस में बच्चे करते थे. बच्चे रियली करते थे. Done, everybody? So I'm just going back to that 6th slide that some students wanted. Guys, tell me if 6 is done properly. If you have major doubts when the lecture comes to the end, you can switch on your videos and ask me. That will be better. We'll have a 1:1 conversation. So पूरा clear हो जाए. जिसका ये बाकी था, ये कंप्लीट करके मुझे बताएं कि कंप्लीट हो गया कि नहीं. हेमांगनी, किस किस का बाकी था ये? यतिन, ask daddy about this. Mummy's box. Check mummy's. Mummy's medicine box. There it is. I hope this is completed. For those of you all, last slide.
Now we just learned that inductor is a magnetic field को store करने वाला device. So I'm not going to do the full derivation, but part of it today. AC circuit containing pure inductor only. Pure inductor मतलब L. Only. L मतलब inductor only. सिर्फ इंडक्टर है. अभी तक हम सिर्फ रेजिस्टर को देख रहे थे कि रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है, उसका एवरेज पावर कितना होता है. अभी इंडक्टर सबको याद है ना, इंडक्टर ऐसे दिखता था, कॉइल सोलेनॉइड जैसा. And we are giving it AC supply, that is E. E is equal to E naught sine of omega t. करंट फ्लो होगा. अगर आपको याद है ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता था जब आप करंट को इसमें भेजते, ये करता क्या है? एनीवन रिमेंबर्स? इंडक्टर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वी यूज्ड टू से. क्या करेगा जब करंट हम कॉइल से पास करते हैं तो EMI में ये क्या करता है? व्हाट डज एन इंडक्टर डू? व्हाट डज अ कॉइल ऑफ वायर डू इन EMI? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस है फैराडेज एंड लेंसेज लॉ. द कॉइल विल, what will the coil do? What will the coil do when an alternating current passes through it? What will the coil do when an alternating current passes through it? Very good, Manish. Back EMF. The word is back EMF, counter EMF. It opposes the change. पूरा का पूरा chapter of EMI is based on Lenz's law. कोई भी चेंज को वो क्या करता है? अपोज करता है, और उस चक्कर में it does what is called as back EMF. EL was called as back EMF, or it was called as counter EMF. Now, यहाँ पे current, the alternating current that is flowing here is I naught sine omega t. This is the alternating current that is flowing in this circuit. ये आपका current का equation है. अब यहाँ पर जो EMF होता है, जो back EMF बनता है, that is minus L di by dt. I hope you remember this formula. Minus L di by dt. हम इसका mod लेंगे. Not, we know it already opposes. So it's L times of d by dt of, what is the current? Current is I naught sine omega t. I hope all of you are with me, you're paying attention. Listen to the derivation because 50% आप ही करने वाले हैं. L d by dt of I naught sine omega t. Now, if I take the derivative, I naught is a constant, will come outside. मतलब L into I naught outside, derivative of sine omega t. What is the derivative of sine omega t? Cos omega t. So L I naught cos omega t into omega आएगा बाहर. मतलब this is going to become EL, the EMF in the inductor is L I naught omega cos omega t. Can I write cos in terms of sine? Trigo wale. Can I write cos in terms of sine? I can write this as L I naught omega cos omega t can be written as sine of omega t plus pi by 2. है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉस को साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं. अब ये पार्ट जरा देखो, ये वाला जो हमें साइन से पहले जो आता है, दिस इज अ कांस्टेंट. This is a constant. So I can write this as, I can say this is EL is equal to E naught sine omega t plus pi by 2. Now you see the difference from the previous and this one. आप देखेंगे यहाँ पे फेज एंगल आया, सबको दिख रहा है फेज एंगल?
आपका करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट आपका वोल्टेज इज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. एंड व्हाट इज दिस ई नॉट? दिस ई नॉट इज नथिंग बट, हमने क्या ई नॉट को सब्स्टिट्यूट किया है? एल आई नॉट ओमेगा. एल आई नॉट ओमेगा को हमने ई नॉट बोला है. Now anyone who can look at this and tell me what is E naught upon I naught from the previous derivation? What is E naught upon I naught from the previous derivation? R है. But इस सर्किट में आपको R दिख रहा है? किसी को R दिख रहा है? Can anyone see R? No, R तो है ही नहीं. R तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो ओमेगा L आपको मिला है यहाँ पर, ओमेगा L जो आपको मिला है यहाँ पर, आपको क्या मिला है? ओमेगा एल इज ई नॉट अपॉन आई नॉट. ये जो ओमेगा एल मिला है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स सफिक्स एल, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. नया वर्ड आया आपके लाइफ में. जैसे रेजिस्टर के ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं, वैसे ही इंडक्टर के ऑपोजिशन को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट ओम ही होगा, because it is E naught upon I naught only. So XL can either be E naught upon I naught. I can multiply and divide by root 2 just like last time. So I will multiply and divide by root 2. So I can say this is nothing but E RMS upon I RMS. है कि नहीं? And इस बार I can say XL is equal to omega L. वही तो मिला आपको. XL इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? ओमेगा एल. ओमेगा मतलब क्या होता है? 2πf होता है. ओमेगा मतलब क्या होता है? 2πf होता है. दैट मीन्स दिस टाइम XL द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जिसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, is 2πf into L. Can I say this time it is directly proportional to frequency? यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. Inductive reactance depends on frequency. Resistance does not depend on frequency. It is independent. But this one depends on frequency. You know, when I say directly proportional, आपका दिमाग चलना चाहिए. It is frequency versus XL. मतलब it's going to be a straight line. It's going to be a straight line. Omega L comes from Krishna, from the previous slide. यहां से आया वो. देखो ओमेगा एल कहां से आया. जब आप लिखोगे आपको दिखेगा. दिख रहा है क्या? पॉइंट नंबर 3 में. आर यू सीइंग व्हेन आई सेड कांस्टेंट? इधर से आया वो. दिस इज पॉइंट नंबर 3. आई कैन कॉल दिस एज पॉइंट नंबर 4. ठीक है, यहां से आया वो. सो फिर मैंने ई नॉट को यहाँ पे डिफाइन किया. पॉइंट नंबर 5. सो आई कैन राइट दिस एज पॉइंट नंबर 6 फॉर यू. दिस इज पॉइंट नंबर 7. ये ऐसा भी लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 8. खत्म नहीं हुआ है डेरिवेशन, but I don't want to put the whole thing into your head today because you have to revise this before you come for the next lecture. डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. यहाँ पे फेज एंगल कितना है कौन बताएगा मुझे? यहाँ पर E का इक्वेशन देखो, यहाँ पर E का इक्वेशन देखो और I का इक्वेशन देखो, और बताओ मुझे कि E और I की इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको फेज एंगल कितना दिख रहा है? π/2 दिख रहा है सबको? π/2 दिख रहा है? यस. और वो भी लीडिंग दिख रहा है. लीडिंग दिख रहा है क्या? अच्छा, cos ऑफ π/2 क्या होता है? cos ऑफ π/2 क्या होता है? 0 होता है. तो पावर फैक्टर क्या होगा ओनली एल में? पावर फैक्टर ओनली एल में क्या आने वाला है? 0. वेरी गुड. तो एवरेज पावर क्या था फॉर्मूला? अगर आपने बुक में लिखा है, इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. वो भी 0 होने वाला है. इसका मतलब है इंडक्टर पावर डेसिपेट नहीं करता. अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब इंडक्टर पावर डेसिपेट नहीं करता, खर्ची नहीं करता. डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है अपना. ठीक है, इतना पहले लिखो, और इसमें कुछ डाउट है तो पूछो.
अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज बताएं, किसी को डाउट है तो आप प्लीज बताएं। ये स्लाइड लिखो पहले, एनीबडी हु हैज अ डाउट, यू कैन अनम्यूट, यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट एंड आस्क। Anybody who has a doubt, please unmute yourself and ask. Satyaveer, unmute yourself and tell me what is your problem. बोलो सत्यवीर, बोलो, बोलने में क्या जा रहा है, बोलो कौन सा पॉइंट। Anybody who has a doubt, please raise your hand. Okay, Pratham, what's your doubt? Ma'am, will you explain fifth and sixth point? Fifth and sixth point. What is fifth and sixth point? फिफ्थ कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ इज नथिंग बट यहाँ से कांस्टेंट उठाया। ये जो फोर्थ पॉइंट है, जो ई एल इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा बोला है, उसको एक नाम दे दिया ई नॉट। लेट ई नॉट बी इक्वल टू, ये तो वैसा लिखते हैं यहाँ पे, उतना ही किया है कि लेट ई नॉट बी इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा। ये जो कांस्टेंट है ना, उसको ई नॉट नाम दे दिया। तो ई नॉट इज एल आई नॉट ओमेगा, और ये जो एल एंड ओमेगा है उसको एक साइड में लिया है और आई नॉट को डिनोमिनेटर में लाया है, उतना ही किया है। इज इट क्लियर प्रथम? कुछ नहीं किया, इसको रीअरेंज किया ना, ओमेगा एल एक साइड पे रखा है और ई नॉट और आई नॉट को क्या किया है, वी जस्ट बॉट इट ऑन द अदर साइड, दैट्स ऑल वी डिड, वी डिडंट डू एनीथिंग बिग। कुछ महा मैथ्स कुछ नहीं चल रहा है यहाँ। एनी अदर डाउट एनीबडी? प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। This is the first slide, Isha. This is the first slide. Yeah, Satyaveer, what is the doubt? Satyaveer, I cannot hear you. No, it just means that inductor does not give out any power, Mehak. We have not come to that. करेंगे, but it's like, you know, inductor कहाँ power consume करता है? Inductor does not consume any power क्योंकि वो storing device है, storing device है। रेजिस्टर ऐसा नहीं है, जो आप बिजली का बिल भरते हैं वो रेजिस्टर की वजह से, हर जगह पे रेजिस्टर है, ट्रांसफार्मर में रेजिस्टर है, हर कॉपर वायर में रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। Why do we chant mantras? सत्यवीर, वो फॉर्मूला है बेटा, इंडक्टर का हमने ईएमआई में पढ़ा था ना, ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला ईएमआई से आया। ईएमआई पढ़ के नहीं हुआ है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, ईएमआई के बिना आप एसी नहीं समझ सकते, विदाउट दैट यू कैनॉट स्टडी ओनली, विदाउट ईएमआई एसी सर्किट्स नहीं समझेगा। आई रिक्वेस्ट द होल क्लास to give the test of EMI, study EMI properly before you sit for AC circuits. EMI का पूरा चैप्टर का टेस्ट है गाइस, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? टाइम पास मत करो, टाइम है ही नहीं पास करने के लिए। सितंबर फटाक से खत्म हो जाएगा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो भागने वाले हैं।
एक जगह पे बैठो, अगर ऑनलाइन अटेंड कर रहे तो वो करो, ऑफलाइन अटेंड कर रहे तो वो करो। 650 अबाव आना चाहिए नीट में, नहीं तो मेडिकल वाले कोई चांस ही नहीं है। 650 एंड अबाव आना चाहिए 720 में। नंबर ऑफ सीट्स भी हमारे पास कम है। ये सब सारे प्रोफेसर्स ने आपको बताया रहेगा। आई एम श्योर 100% एवरीवन इज टेलिंग यू दिस। नंबर ऑफ सीट्स कम है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको वापस वापस कि प्लीज अंडरस्टैंड कि द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है, MSCT का स्कोर 160 अप होना चाहिए टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस। 160 एंड अबव, नॉट इवन 120, 130 भी नहीं चलेगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट विथ 130 ऑन 200, गुजराती माइनॉरिटी को नहीं लगा, माइनॉरिटी होके भी उसको नहीं लगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। पूरा टेक्स्ट बुक छान पान करके पढ़ लो। Is it completed? This slide is completed, everybody. नहीं कंप्लीट हुआ है तो अभी बताओ कि कंप्लीट नहीं हुआ है। नॉट डन करके बताओ, नो करके बताओ। ईशा रुको जरा, क्लास को कंप्लीट करने दो। आप प्रीवियस डेरिवेशन बोल रहे हो। एनीवे बाय आज रात तक तो तुमको पावर पॉइंट मिल जाएगा ना। पीपीटी तो आज तुमको प्रीवियस मिल गया रहेगा ना, एसी सर्किट्स का मिला रहेगा, लेक्चर नंबर 2। प्रथम सबका नाम होगा ना बेटा, एवरीवन्स नेम इज देयर। इफ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट और यू हैव एनी अकाउंट, सबका नाम आता है प्रथम। नहीं मेरा होगा ही ना, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग। आई हैव वैलिड, मेरे पास गूगल पेपर्स होगा, मैं गूगल स्कॉलर, मतलब आई एम डूइंग माई PhD प्रथम। तो मेरा PhD के जो पेपर्स है ना, इसकी वजह से मेरा गूगल पे आएगा ही। आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मेरा नाम डालेंगे ना तो आपको मिलेगा ही, दैट्स व्हाट। या हाँ, तो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, या सो इसलिए मेरा नाम उसमें आएगा। या नेक्स्ट स्लाइड गाइस, स्लाइड नंबर 11। आई एम डूइंग इट फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। मैंने काफी इंटरव्यूज भी दिया है, वो एक कॉलेज दुनिया करके वेबसाइट एंड ऑल, आई हैव गिवन इंटरव्यूज, तो उसमें भी होगा। इज इट कंप्लीटेड गाइस? प्लीज टेल मी। कोई भी डाउट होगा अभी आज के लेक्चर में प्लीज बताओ, क्योंकि आगे यही जो स्टेप्स है हम 6 अदर डेरिवेशंस के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टेप हमने अजम्पशन एक ही जगह पे किया है, जहां पर हमने लेट ई नॉट इज इक्वल टू किया है, बिकॉज हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए ई और आई का। और मैंने आपको पहले भी बोला था, फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ओनली। फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ओनली। मैंने सोचा था कि आज अगर आप लोगों को पोल में 90% अबव आता है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी। देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 90% एक भी क्वेश्चन में नहीं आया दोनों बैच को। इज इट डन गाइस? ये लिख के हो गया?
Okay. So that's it from me today. If you have any doubts, you can ask me. I'm ending the session.